اگر ایسا بندہ اڑتا بھی آوے نا اس کو یقین نہیں کر اگر اس کے چہرہ دیکھ کے اللہ یاد آ کے تو وہ سمجھ قابل ولی ساڈے کو ایک بزرگ ہے اگر اس کے نال بندہ محبت کرتا ہے وہ کامل ولی بھی قبر سے باہر آ کے آپ کو دیدار کرا سکتا ہے. اچھا یہ خود بھی بندہ گمراہ ہے دوسروں بھی کر رہا ہے. یہ ظلم ہے, یہ سراسر ظلم ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, WM نیوز کے ساتھ آپ کا میزبان جعفری آپ کی خدمت میں حاضر ہے. ناظرین میں اس وقت موجود ہوں ملتان کے اندر. ہم یہ عوام سے جانیں گے حد خطیب سرکار چشتو والی سرکار ہے, ان کی جو کرامات ہیں, آنکھوں سے چینے نکالنا, منہ سے کیلے نکالنا, منہ سے چھریاں نکالنا, اور جو لوگ ان کے پاس ویل چیئر پر چل کے جاتے ہیں ان کو وہ اپنے دم درست صحیح کر دیتے ہیں. ہم عوام سے جاننے کی کوشش کریں کہ آج کل کے دور میں اس طرح کی کرامات موجود ہیں یا نہیں. آئیے عوام سے جانتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں حضور آپ؟ بالکل. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ حد خطیب سرکار چشتو والی سرکار ہے, ان کی کچھ کرامات ہیں, آنکھوں سے موتی نکالنا, منہ سے کیلے نکالنا, اور جو لوگ ان کے پاس ویل چیئر پر چل کے جاتے ہیں ان کو وہ صحیح کر دیتے ہیں. ہمارا سوال یہ ہے کہ آج کل کے دور میں ایسی کرامات موجود ہیں یا نہیں؟ کرامات ہے اچھا الحمدللہ. جو قبر والا بھی ہے نا کرامات ظاہر ہوتی ہے, لیکن جو کیل یا شو بازی یا اس طرح ایک شعبہ ہوتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا اگر ایسا بندہ اڑتا بھی آوے یعنی وہ کامل ولی نہیں ہوتا. اچھا جو زہر وہ شوشہ کر ہوتا ہے. تو جس کو دیکھ کے اللہ یاد آ جائے وہ کامل ولی ہوتا ہے. وہ کام کر دیتے ہیں. اچھا انہوں نے تو منہ پر ماشاءاللہ آپ کی سنت رکھی ہوئی ہے اور بہت پیاری لگ رہی ہے. انہوں نے تو اس طرح کچھ بھی داڑھی وغیرہ بھی نہیں رکھی ہوئی, لیکن وہ کہتے ہیں کہ میں تو اللہ کا ولی ہوں. نہیں, داڑھی نبی پاک کی سنت ہے, ظاہری سنت ضروری ہے. اگر وہ نماز نہیں پڑھتا یا داڑھی نہیں رکھے تو پھر اس کی اللہ ہی حافظ ہے. اگر یہ دیکھیں نا کہ داڑھی نہیں رکھی ہوئی لیکن وہ خود کو ولی بھی کہلواتے ہیں نا, ہو سکتا ہے؟ نہیں, یہ تو غوث پاک کے اولاد میں ایک آدمی تھا نا جی, بہت خوبصورت, اچھا سونا بھی ہے, لیکن اس کا یہ حال تھا کہ اس نے داڑھی مبارک نہیں رکھے. وہ غوث پاک کی اولاد میں سید کہلاتا ہے. تو جب اس کو پتہ لگا بھی آدمی ان کی زیارت کے لیے آئے, دیکھنے کے لیے آئے, تو ایک بزرگ جو امتی وہ ان کو دیکھ کے واپس چلا گیا. اچھا ان کو دیکھ کے واپس چلا گیا. تو لوگ حیران رہ گئے کہ اتنا غوث پاک کی اولاد ہے, لوگ آپ کی زیارت کے لیے آ رہے ہیں, آپ جو ہے نا کیوں چلے گئے. انہوں نے پوچھا کوئی مرید رہ تو نہیں کیا واپسی, کوئی بندہ. انہیں کہ بزرگ وہ آپ کو دیکھ کے چلا گیا. تو انہوں نے کہا ان کو بلاؤ. بلا لیا. ہاں بھائی آپ نے دیکھ کے واپس چل کیا ہو جائے. انہیں کہا کہ یار میں نے سنا ہے غوث پاک کی اولاد ہے. جناب حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ, بڑے خوبصورت چہرہ, داڑھی مبارک, نبی کی اولاد بھی ہیں, علی پاک دی اولاد بھی ہیں. لیکن میں اس وجہ سے واپس چلا گیا کہ آپ دے سنت نہیں ہے, سنت کے تارے گئے. انہیں کہ بس اس غریب نے پھر ہاتھ جیسے پھیرا, وہ شوشہ ہو گیا, داڑھی ظاہر کرنے لگا. آپ نے فرمایا ایسے نہیں, یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں. اس بزرگ نے ہاتھ پھیرا, اس نے کہا داڑھی میں بھی کم کر سکتا ہوں کیونکہ میں تو امتی ہوں. لیکن نبی پاک نے فرمایا ظاہری سنت چاہیے. اگر بندہ کہتا ہے کہ میں لوگ چھپ کے فلان کم کر رہا ہوں, یہ کر رہا ہوں, لیکن انہوں نے کبھی چھپ کے تو کر رہا ہے, لیکن جو بندہ مسجد میں عبادت کر رہا ہے, دکھا رہا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے داڑھی تیری ظاہری ہونی چاہیے. اور بندے اکثر یہی آتے جدھر بھی جاؤ نا بدنامی ہوتی ہے, فلانا یوں کر رہا ہے, فلانا اس طرح کر رہا ہے. تو یہ ایسے اللہ کے نبی نے فرمایا اگر ایسا بندہ اڑتا بھی آوے نا اس کو یقین نہیں کر. اگر اس کے چہرہ دیکھ کے اللہ یاد آ کے تو وہ سمجھ قابل ولی. کیا بات ہے ماشاءاللہ. اچھا پھر آپ کو لگتا ہے کہ حد خطیب صاحب پھر ڈرامے بازی کر رہے ہیں, ان کے پاس جو لوگ ہیں جو ویل چیئر سے کھڑے ہو جاتے ہیں وہ ان کے اپنے ہی بندے ہیں؟ پھر ان کو ہوتے ہیں نا جی, جیسے کوئی بھی کاروبار کر رہے ہو, وہ جیسے چرخا چلا رہے ہو, کوئی ٹکٹ بیچ رہا ہے, ان کے آدمی ہوتے ہیں, ان کو پھنسا کے ان کی جو ہے نا کاروبار چلاتے ہیں. تو یہی وجہ ہوتا ہے. اللہ آپ کو سکھ دے, کیونکہ میں نے جو ہے نا ولی کامل
कलंदर साहब है, बुजुर्ग साहब है, साढ़े को एक बुजुर्ग है, अगर उसके नाल बंदा मोहब्बत करता है वो कामिल वली भी खबर से बाहर आके आपको दीदार करा सकता है। अच्छा क्योंकि मैंने देखा ना जी, अच्छा माशाल्लाह। ऐसे नहीं होता, मैं इस बार नहीं करता, आते जाते भी हर जगह, लेकिन कोशिश ये होती है किसी को तकलीफ ना हो, शोशाबाजी ना हो, किसी को लूटना नहीं है। इस वजह से हर इंसान को चाहिए, बुजुर्गों को चाहिए, मेरी मामा बहन को चाहिए, ऐसा काम करें जो अल्लाह के रसूल ने बताया है जी, उस पे अमल करें। अगर शोशाबाजी तो फिर ये खुद भी बंदा गुमराह है, दूसरों को भी कर रहा है। अच्छा कहा जाता है कि वो जो लिबास तन करते हैं वो कई लाखों का लिबास होता है और वो जो खत्म नबूवत के नाम पे लोगों से पैसा जमा करते हैं और वो फिर अपनी आशाइशात पर खर्च कर लेते हैं। करते हैं ये शायद। क्या कहेंगे इसके ऊपर कि वो जो इतना लिबास पहनते हैं और ले हक उसके खत्म नबूवत के नाम पे रहे लेकिन वो काम नहीं कर रहे। आप सही बता रहे हैं, क्योंकि मैं जो अक्सर सिंध भी जाता हूँ, सरगोदा भी जाता हूँ जगह पर, लेकिन जो इस दौर में जा रहा है ना वो उस में नहीं चल रहा है। खत्म नबूवत हो जो कोई भी कारोबार कर रहे हैं, एक कारोबार हो गया उनका। तो इसलिए उनको चाहिए है, अगर अल्लाह के नबी से मोहब्बत है तो इंसान के जो दिल अहम चीज़ होता है उसको मुर्दा ना करें, जिंदा रखें, मखलूक खुदा दी, वैसे ही बंदा खिदमत कर सकता है। तो ये जो है ना शोशाबाजी अच्छी बात नहीं है। शोशाबाजी। अच्छा वो अपने जो उनका आस्थाना है वहाँ पर लोगों को बुलाते हैं और बड़ी बड़ी दूर से लोग उनके पास चल के आते हैं। वो कहते हैं कि जी आपने यहाँ पर 7 चक्कर लगाने हैं, मतलब कि एक दफा दम करवा लिया फिर आना, फिर 7 दफा आना है। अच्छा जब 7वीं दफा भी वो इलाज नहीं होता उस बंदे का, वो कहते हैं जी आपकी नियत में खोटता, आप दोबारा से शुरू करें 7। अगर तेरे में इतने दम है, वली कामिल है, तो इंशाल्लाह पहली बार भी आदमी आएगा ना वो इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही। अगर उसको भी यकीन है आप इतने दम है, वली कामिल है, लेकिन पहली दुआ में काम हो जाता है, दुआ में काम हो जाता है। बिल्कुल ऐसे ही। आप जो है ना जो हम तवीज़ लिखते हैं, जो भी करते हैं, ये एक दुनिया गुमराह हो रही है। इनको चाहिए अल्लाह का जिक्र करें, उसके रसूल का जिक्र करें, कुरान पाक से मोहब्बत करें, तो इंशाल्लाह वो बंदे गुमराह होता ही। अच्छा ये तो हो गए हक खतीब साहब, इसके अलावा भी बेशतर वो छोटे छोटे और भी पीर रहे, ठीक है, उनके बारे में अवाम को क्या कहना चाहेंगे कि अवाम को किस तरह मोहतात रहना चाहिए, क्या करना चाहिए कि अवाम कंट्रोल करे इसके ऊपर? मैं अक्सर जाता हूँ ना, सरगोदे भी जाता हूँ, ठीक है, आवाज भी कभी कर लेता हूँ। एक बुजुर्ग वहाँ आ रहे थे, मेरे को बताया वो जो है ना तवीज़ देते हैं। अच्छा जब तवीज़ देते हैं वो अपने यानी सरे केज कलोटी आते हैं, उनकी जुबान में भड़ोला आते हैं। अच्छा। और जिसको वो कहते हैं क्या टप भी आते कहते हैं। अच्छा उसमें वो बंदा डालता है तो वो उनके दाने कणकी खत्म होते नहीं। अच्छा। मैंने सवाल किया भाई जो अपनी जो है ना उसमें डाल दे दो, घर के अंदर जो है तेरे भड़ोला या कोई बर्तन उसमें डाल, तेरे को जरूरत नहीं किसी के आगे हाथ फैलाने की। अगर तू इतने फैला रहा है तो ऐसा भी होता है। भले ये कामिल कई कहते नहीं खाते, रोजा रखते, वो अली कलंदर ने भी ऐसे कई साल तक, बाबे फरीद ने भी कई साल तक, इन बुजुर्गों ने भी कई साल तक रोजे रखे। बाबे फरीद का एक बढ़िया अलाउद्दीन साबरी साहब, उन्हें भी कई साल तक रोजे रखे, खिदमत की। अच्छा उन्होंने जो है ना ऐसा काम जो है ना, अब अगर कोई मैं भी आप भी हैं भाई, बुजुर्ग जो है उनको चाहिए है कि वो जो है ना अपने पेट में डाल दे, खुदा का जिक्र कर, उनको भूख नहीं लगती। अगर तवीज़ ये काम कर रहे हैं तो फिर उनको चाहिए दूसरों को क्यों देते हैं, खुद ये काम। सही बात। अच्छा भाई हक खतीब साहब को मेरे ख्याल से ये चाहिए कि जो लोग उनके पास शिफा लेने जाते हैं, अगर वाकई उनको वो शिफा देते हैं वो किसी अस्पताल के सामने आ जाए, मतलब कि जो लोग आ रहे हैं एक तो उनका पैसा बच जाएगा, टाइम बच जाएगा, लोगों के जलील होने से बच जाएंगे। हाँ ये ऐसे ही जो है ना उनको चाहिए, क्योंकि उनको चाहिए अगर तेरे में इतनी दम है, खुदा का बंदा है, अच्छा खुदा तेरे उत्ते कर्म किया है तो तू चाहिए है किसी अस्पताल में एक बंदा आ गया, हमारा बंदा भी फलानी जगह पे बंदा जो है ना तबीयत देता है। अच्छा उसका क्या होता है, अगर पित्ते में पथरी है तो उसकी पथरी बाहर आ जाती है। अच्छा मैंने उस टाइम उधर था घर शाहजमाल में, मैंने कहा यार बेवकूफ बंदा है, अगर पित्ते में पथरी है तो चलो मैदे में तो चलो मैं मान सकता हूँ पेशाब के जरिए, जो पित्ते में पथरी है अगर उसमें दम है तो है मुश्किल, लेकिन फौरन जा इसका जो है ना अस्पताल में ऑपरेशन करा, उसकी दवाई ले आया, वो सब किया, उसको आराम हो या नहीं, फिर आखिरकार अस्पताल में गए, उन्होंने वो पित्ता निकाल कर बाहर फेंक दिया, बंदा ठीक हो गया। अच्छा
अच्छा इस्लामाबाद का एक बंदा है, ठीक है, एहसन नाम का, उसकी एक बेटी, छोटी सी बेटी थी, बाली सकीना की। तो उन्होंने, उसके ना दिल में सुराख था, ठीक है, और उसके ना हार्ट बीट बड़ी तेज थी। तो किसी ने उनको मशवरा दिया कि जी आप उनके सरकार के पास चले जाएं, हक खतीब सरकार के पास। तो वो वहाँ ले गए, तो उन्होंने वहाँ पे उनके 3 चक्कर लगवाए, ठीक है, और उन्होंने कहा जी इस बच्ची को आपने ना तो मेडिसिन देनी है, ना दवाइयाँ देनी है, और ना ही अस्पताल लेके जाना है। 3 चक्कर लगवाए और वो बच्ची मर गई। इतनी प्यारी बच्ची, इतनी छोटी फूल सी बच्ची, ये अभी खिली भी नहीं थी। क्योंकि क्या कहेंगे इसके बारे में? ये जुल्म है, ये सरासर जुल्म है। अब मैं भी हूँ ना, मैं अल्लाह भी करता हूँ, नमाज भी पढ़ता हूँ, कुरान दर्स भी देता हूँ, लेकिन जैसे मैं खुद अपनी दवाई लेता हूँ, इंजेक्शन लगा लेता हूँ, टीका लगा लेता हूँ, तो मैं यही मशवरा देता हूँ, जिन इंसान है उसको ये चाहिए, तकलीफ होती है, लेकिन उनको चाहिए दवाई नबी पाक की सुन्नत लेनी चाहिए, लेकिन ऐसे शोषण से लोगों पे जुल्म ना करें। अच्छा दम दरूद में कहा जाता है कि इस्लाम के अंदर है, शिफा है, लेकिन जो बुजुर्ग देते हैं, जो दुआएं करते हैं, उनका असर है। लेकिन अब ये इतनी शोबदेबाजी और ये क्या कहेंगे, अवाम को क्या कहेंगे कि इसके साथ क्या किया जाए? हमको सही क्योंकि एक नहीं तो बेशतर लोग मरे हैं, बेशतर बच्चे मरे हैं इसकी वजह से। आप इंडिया में चले जाना, ये जो जादूगर होते हैं, दाता साहब के सामने बंदा उठता, जोगी था, लेकिन उसके पल्ले कुछ नहीं था। तो दाता साहब अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र करते थे। अच्छा, आपने जो है ना उनको कहा भाई मैं उड़ रहा हूँ, आग लग जाएगी, आप उस जगह पे बैठे रहे, लेकिन उसको कुछ नहीं होया। जिस टाइम आपने जो है कराम से जुत्ती सीटी, नलैन सेट के वो बंदा थल्ले आ गया, आपके पैरों से डिग गया, माफी मांग के कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया। अच्छा, क्या बात है? शोशाबाजी नहीं ना, क्यों उन्होंने सलाम की खातिर काम किया, अपना वतन छोड़ दिया, घर बार छोड़ दिया, लेकिन माल इकट्ठा नहीं किया। इसलिए मखलूक खुदा को चाहिए भले ये कम दुआ करें, दम करें, लेकिन इतना भी ना करें जो बंदा वो शोषा कर रहा है, कील भी निकाल सकता है, हर से निकाल सकता है, लेकिन अवाम को चाहिए इस रास्ते से हट जाएं, गुमराही में मुब्तला न हो। अगर कोई आपको शिफा होनी है तो आप नमाज अदा करें, बवुज़ू रहें और अल्लाह के नबी की सुन्नत पे अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह आपको कुछ भी नहीं होगा। आज जितना नाज़रीन, जैसे कि आपने देखा हमारे साथ मुफ्ती साहब हुई, तो उन्होंने ये बताया कि ये हक खतीब सरकार जो है ये सिर्फ और सिर्फ फरार कर रहे हैं और लोगों के साथ धोखा कर रहे हैं। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। अपने मेज़बान जाफरी को दीजिए इजाजत। देखते रहिए WM न्यूज़। अल्लाह निगहबान।